Good morning, students. Subject mass media research. Now we are watching the first point, that one more chapter, that is what is consumer research और consumers research नाम का हम लोग टॉपिक देख रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 चालू है. उनमें से हमने TRP फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया है. सेकंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर्स रिसर्च. कंज्यूमर्स रिसर्च का मतलब क्या होता है? मार्केट रिसर्च. ओके, एक कंज्यूमर्स को टारगेट करना, उनकी बिहेवियर देखना, उनको मोटिवेट करना अपने प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर्स रिसर्च. हर एक बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन को कंज्यूमर्स की साइकोलॉजी समझनी होती है और उनका बिहेवियर समझना होता है कि वो परचेसिंग करते वक्त कौन सी बिहेवियर रखते हैं. तो इसलिए कंज्यूमर्स रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो देयरफॉर कंज्यूमर्स रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. That in the consumers research they given the informations about the brand of different products and services. Okay, also they are given information about all the products, so therefore they are given more concentrations about the consumers satisfactions. Okay, and also they are tried to increase or boost their business. Okay, by the consumers research they are define that how to consumers is making decision by different kind of products, how to he ready to purchase that product. They are also promote that particular products. They are increasing the interest of consumers, and how to consumers is interested to the particular products and how he is purchasing. Okay, just like they are given example, if every electronics company is decided the process how to consumers are ready to purchase the electronic devices. So therefore sometimes he is watching the market demand that particular products, so therefore he is doing the electronic survey. Okay, so they are given some important information that particular electronics products, so consumers is ready for purchasing the products, and also they are given some gifts, some other things to purchasing that products. Okay, so what are the consumers research objective? So consumers research objective is, you knows that each and every new products are not consumers directly ready to purchase it. Okay, so therefore each and every businessman and organizations are tried to reach the products by the consumers hands. So therefore they are given all kind of information about that particular products. They are defined the brand quality, they are defined how to buy that products, what kind of services they are offer after they are buying that products. Okay, so for this all kind of information they wants to consumer research. Okay, the consumers research is increasing the sales. Okay, also consumers research is helpful for understanding the consumer psychology. Also it's helpful for understanding the buying pattern of the consumers. It is also important to helping the consumers to purchasing different kind of brands, products and services. Okay, so consumers research models. Now we are watching the process of consumer research. First one is qualitative. Okay, in this one we are watching the three types of process. First one is focus on group. जब भी कंज्यूमर्स का रिसर्च करोगे या तो कंज्यूमर्स कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कंज्यूमर्स का सिलेक्शन करते वक्त एक ग्रुप को फोकस करना है. उस फोकस ग्रुप में से 6 या 10 लोगों के रिस्पॉन्ड देखने हैं. ओके, कोई एक मॉडरेटर उनके ऊपर रखना है जो इन फोकस ग्रुप पे ध्यान देगा. ओके, और उनमें से जितने सारे मेंबर्स होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन देने को बोलना है. कस्टमर्स को ब्रांड की या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देने को बोलना है, ताकि उस ब्रांड के बारे में कंज्यूमर्स क्या सोचता है इसका रिसर्च कर सके. नेक्स्ट है 1-to-1 इंटरव्यूज़. ये कॉन्वर्सेशनल मेथड है जिसमें रिसर्चर्स क्या करेगा, हर एक पर्सन्स के पास जाएगा, उसको एक क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेगा हर एक प्रोडक्ट के बारे में. तो
ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने के बारे में सोचेगा और हर एक पर्सन उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेगा। दैट इज़ कॉल्ड 1-to-1 इंटरव्यू। नेक्स्ट है कंटेंट और टेक्स्ट एनालिसिस। इसमें क्या करेगा कि कंज्यूमर्स के सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स या इमेजेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखेगा, तो कंज्यूमर्स वो कंटेंट या इमेजेस देखकर उस प्रोडक्ट के बारे में अपने दिमाग में एक इमेजेस बनाएगा और कंज्यूमर्स परचेस कर सकता है वो प्रोडक्ट। तो इस तरह से कंज्यूमर्स का रिसर्च किया जा सकता है। ये है क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अभी क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या किया जाएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में कितने नंबर्स और कितने पर्सन्स प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देखी जाएगी। ओके, इसमें कितने कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है ये भी देखा जाएगा। ओके, और कितने कंज्यूमर्स के हिसाब से हम लोग लॉयल है ये भी देखा जाएगा। ये सब डेटा कंपनी कलेक्ट करेगी और अपने कंपनी को और पावरफुल बनाने की कोशिश करेगी। ओके, नेक्स्ट है प्रमोटर स्कोर क्वेश्चंस। इसमें अपने ब्रांड के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए फैमिलीज़ या फ्रेंड्स को 0 से 10 नंबर्स तक के 10 क्वेश्चन पूछ के उनको 0 से 10 नंबर्स देगी। ओके, इसमें वो वर्ड टू वर्ड या माउथ टू माउथ कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, तो इससे कंज्यूमर्स का बिहेवियर पता चलेगा कि कौन सी चीज़ों पे कंज्यूमर्स ज़्यादा फोकस करता है, तो इन चीज़ों की एडवर्टाइज़ करना और उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे बहुत सारा टाइम्स और रिसोर्सेज सेव हो सकता है। दिस इज़ द प्रोमोटर्स स्कोर क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है ऑनलाइन सर्विस क्वेश्चनियर्स या पोल्स। ओके, इससे भी आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कंज्यूमर्स रिसर्च के लिए का ऑब्जेक्टिव हमने देखा। फर्स्ट है उसका ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स। ओके, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड ऊपर जो हमने देखे, डेटा एनालाइज करना ये भी एक पॉइंट्स है कि हर एक कंज्यूमर्स की बिहेवियर देखना और उनके परचेसिंग पैटर्न्स देखना। एंड लास्ट होता है रिपोर्ट प्रिपेयर करना। तो इस तरह से कंज्यूमर्स रिसर्च चलता है। ओके, अभी कंज्यूमर्स रिसर्च के लिए के इम्पोर्टेंस, फर्स्ट है मार्केट रेडियंस, रीडनेस। ओके, कंज्यूमर्स रिसर्च जब करोगे आप तो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कैसे गुड्स है वो सामने वाले कंज्यूमर्स को आप लोग बता रहे हो। ओके, तो किन प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है ताकि कंज्यूमर्स वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर सके या वो सर्विस ले सके, इसके ऊपर आप लोग ध्यान दे सकते हो। ओके, इससे आप मार्केट को टैप कर सकते हो। ओके, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हो। ओके, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कंज्यूमर्स रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ों पे कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करने को रेडी है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई टारगेट कंज्यूमर्स। ये है एक जोग्राफिकल सेगमेंटेशंस। ओके, इसमें पता चलेगा कि कौन से एरियाज़ के या कौन सी जोग्राफिकल लोकेशंस के कंज्यूमर्स कौन सी चीज़ों की प्रोडक्ट्स बाय करने में या ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। ओके, रिसर्च बैंड, कस्टमाइजेशंस, मार्केटिंग। ओके, ब्रांड के लिए अप्रोच, कंज्यूमर्स का सेगमेंट, ये सब चीज़ों का यहाँ पे नॉलेज आ सकता है। नेक्स्ट है परचेसिंग सर्विसेज। जैसे ही कंज्यूमर्स चीज़ें परचेस करेगा उनको आफ्टर उनका फीडबैक लेना है। ओके, उनको प्रोडक्ट्स के फीचर्स बताने हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशंस को हर एक कंज्यूमर्स का फीडबैक मिल सकता है, कंज्यूमर्स के परसेप्शंस देखने मिल सकते हैं, कंज्यूमर्स से वो बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस मांग सकते हैं जिससे मार्केट में वो एक परफेक्शंस ला सकते हैं। ओके, सो ये था कंज्यूमर्स रिसर्च। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।